Hi guys, so this is the news which I actually got to know a little bit late. I'm making this video around about 12:30 a.m. now. This video is actually dedicated to all the finance lovers, by the way. मेरे उन बच्चों के लिए जिनको finance में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी है, and those who really love finance. Now, coming back to the main point, monetary policy of RBI 21-22. This news was popped up I think a couple of hours back, 12-13 hours back. And it does have a lot of significance, by the way, as far as the equity market is concerned, and sort of what we are looking at as the economic policy, or where we are actually heading as a country. Now let's move ahead. The monetary policy of India is basically consists of 6 people. इसमें जो 3 लोग होते हैं वो silent पे होते हैं. Silent मतलब they are external and 3 people are actually internal. I can probably quickly walk you through this. So what you have is there are 3 panelists from the RBI itself. So you've got the governor. You've got the Michael Patre is the deputy governor. Shashikanta Das is the main one, and then you have the executive director of the bank who's in charge of the monetary policy. That's M.K. Sagar. So these are the main folks out there who are actually running this show on a daily basis. Then we have 3 people selected across the country, by the way. So number 1 is Ashima Goel. Ashima Goel ma'am is basically also a member of Prime Minister Modi's Economic Advisory Council or Department, you can say. She's also a professor at Indira Institute of Development, and she was also a fellow at Yale University. Then we have Shashank Bede, by the way. He's an advisor to National Council Applied Economic. I think he's been known as a think tank, if I'm not wrong. हाँ यहाँ पे mention करा है. And last but not the least, one of my favorite, my professor who taught me at IIM Ahmedabad. By the way, I've done my executive MBA from IIM Ahmedabad. Jayant Verma sir has taught us finance strategy at IIM Ahmedabad, and amazing guy. Now moving ahead, I'll quickly show you ये divide कैसे होता है basically. अगर आप देखो कि 3 concept होती है, dove, neutral and hawks, by the way. So hawks are those people, those who are actually favoring they actually favor interest rate as their top priority, because इनका एक फंडा होता है कि भाई हमें इन्फ्लेशन जो है, हमें इन्फ्लेशन को लो रखना है, तो आप रेट बढ़ा दो. इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा डिटेल में. एंड देन यू हैव doves people. So these are people जिनको ये कैटेगरी दिया गया है. ये लोग वो होते हैं, ये लोग एक्चुअली प्रेफर करते हैं accommodative policy. Accommodative policy का मतलब ये नहीं होता कि इनको इन्फ्लेशन की कुछ पड़ी नहीं है, बट accommodative policy का मतलब होता है ये थोड़ा सा step by step kind of improvement करने की कोशिश करते हैं. And then you have 3 people who are neutral. Again, this is Jayant Verma sir, the professor at IMA. I was fortunate enough to learn certain topics from him. ऐसी आपकी पूरी की पूरी आरबीआई कमेटी काइंड ऑफ मॉनेटरी एमपीसी जो होती है वो डिवाइडेड होती है. अभी हुआ क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे आपका जो रिपो रेट है, राइट, आपका रिपो रेट जो है, रिपो रेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, ये आपका आरबीआई है, ठीक है, एंड देन आपके यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, राइट. तो आरबीआई क्या करता है, पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, राइट, बिकॉज आरबीआई इज अ पेरेंट बैंक, राइट. आरबीआई इज अ मदर ऑफ ऑल द बैंक. तो ये पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं. तो जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर ये बैंक्स जो आरबीआई से पैसे लेते हैं, ये बच्चे हैं, ये पेरेंट है, राइट, ऐसे समझ लो, राइट. तो ये जो रेट होता है, जिस रेट पे पैसा दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को कहते हैं रिपो रेट, ठीक है. एक होता है रिपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रिपो रेट, आरआरआर. इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो नहीं, मतलब ये रियलिटी है, कमर्शियल बैंक के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तब ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली वो पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, और आरबीआई उनको कुछ तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, विच इज अराउंड अबाउट 3.5%. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका रिवर्स रिपो रेट विल ऑलवेज बी लोअर देन योर रिपो रेट. क्या बोला मैंने, आपका रिवर्स रिपो रेट विल ऑलवेज बी लोअर देन दी reverse the repo rate, right. ये थोड़ा सा confusing है, समझ लें, right. So RRR is always going to be lower than the RR. Okay, that's how it is. Now moving ahead, अब ये constant क्यों रखा गया है, ठीक है. अब थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड समझ लेते हैं यार. समझ लो, आपकी यहाँ पे कमर्शियल बैंक है और आपकी यहाँ पे आरबीआई है. अब पहली बात, रिवर्स रिपो रेट, राइट, जो मैंने आपको बोला वो 3.5 है, क्लोज बाय है, और रिपो रेट है जो 4% है. रिपो रेट मतलब आरबीआई ने बैंक को जिस रेट पे लोन देना है वो वाला रेट. ना अभी समझ लो यार, रिपो रेट कांस्टेंट क्यों है. अभी रिपो रेट का फंडा क्या होता है, ये जो रिपो रेट है, अगर आप देखोगे, ये एक्चुअली अगर आप 2019 में चले जाओगे तो ये था अराउंड अबाउट 5.15. अब 4 दिसंबर 2020 को ये आके रुक गया 4% पे, राइट. ये अपना पोस्ट कोरोना पीरियड है, राइट. अभी हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, राइट. ये पोस्ट कोविड पीरियड है. अब यहाँ पे क्या हुआ था, कोरोना की वजह से लॉट ऑफ बिजनेसेस हैड अ प्रॉब्लम, एंड लॉट ऑफ पीपल हैड प्रॉब्लम, राइट. सो मार्केट में क्या नहीं था भाई, मेरे मार्केट में नहीं था लिक्विडिटी. अब जब लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है
तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना पड़ता है. सो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने कहा कि चलो यू नो व्हाट, टू ऑल माय कमर्शियल बैंक्स, एक काम करो, मैं आपको जो जिस रेट में मैं आपको पैसे देता हूं, पहले वो मान लो 5.5 था, अभी मैं इसको 4% कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा कम करके देता हूं, राइट. तो 4% मैंने आपका ये रिपो रेट कर लिया, आप मेरे से पैसे लो 4% के ऊपर, और ये जो पैसा है आप पब्लिक को दो, आप पब्लिक को दो, आप कॉर्पोरेट्स को दो, ताकि उनके पास पैसा ज्यादा बने और वो स्पेंड करना चालू करे, बिकॉज इकोनॉमी हैज टू मूव, राइट. तो रिपो रेट का वो जो फंडा होता है वो बेसिकली होता है कि भाई आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा और कमर्शियल बैंक फिर पब्लिक को पैसा देगा, ताकि पैसे की किल्लत ना रहे मार्केट में. अब रिवर्स रिपो रेट का फंडा क्या होता है, जब आरबीआई को लगता है कि बेटा इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और अब ये लोग ऐश करने लगे, मतलब ये लोग पैसे दे रहे मार्केट में, पर ये लोग रिकवरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करता है आरबीआई, कमर्शियल बैंक के थोड़े कान खींच लेता है, तो उनको थोड़ी सी लालच देता है. तो आरबीआई विल से दैट अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो अभी आपका जो रेट था वो हो गया 3.75%, तो कमर्शियल बैंक बोलते हैं अरे ग्रेट यार, चलो ठीक है, आरबीआई के पास तो पैसा महफूज है, राइट. तो अभी आरबीआई ने तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो ठीक है आरबीआई के पास थोड़ा ज्यादा पैसा रखा जाए, राइट, रादर देन गिविंग इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट में हालत थोड़ी सी खराब है. तो ये फंडा ऑलवेज होता है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आरबीआई ने ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो एक्चुअली कम नहीं किया है. कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद से कम होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यार ये तो बढ़ना चाहिए, बट जैसे आपने कहा, राइट, अकोमोडेटिव पॉलिसी, जो मैंने आपको पैनलिस्ट दिखाए थे, राइट, अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई जैसे जैसे इकोनॉमी की जरूरत है वैसे वैसे आप डिसीजंस लेना चालू करो. अब होता कैसे देखो, रिपो रेट की वजह से अगर रिपो रेट घटा, जो घटा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, अगर आप देखोगे ये मार्च 2020 को 440 था, अभी जाके ये 4% बन गया है. तो होता कैसे है, बैंक्स के पास ना बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं. पैसे तो वो रखेंगे नहीं, वो पैसे तो किसी ना किसी को देंगे, मतलब बिजनेसेस को देंगे, लोगों को देंगे, होम लोन, ये लोन वो लोन, राइट. इसके वजह से क्या होता है भाई मेरे, मार्केट में आती है जोरदार लिक्विडिटी. अब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, अगर लोगों के पास पैसे है मार्केट में, बराबर, अगर लोगों के पास पैसे है तो लोग क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे. क्या बाय करेंगे, घर बाय करेंगे, कार बाय करेंगे, कमोडिटीज बाय करेंगे, सब चीजें लोग बाय करेंगे, राइट. तो जब लोग बाय करेंगे, राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो पैसे का जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है. अब यहाँ पे है कंज्यूमर और यहाँ पे है तुम्हारा प्रोड्यूसर. जब प्रोड्यूसर को पता चलता है कि भाई लोगों के पास तो बहुत पैसा है, बिकॉज बैंक तो पैसे दे रही है ना, तो ये क्या करते हैं, ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है तुम एक चीज $10 की, सॉरी, तुम एक चीज ₹10 की बेचो या उसको यार तुम ₹15 की बेचो, तुमको तो कोई लोड नहीं है, तुमको तो बैंक ही पैसे देने वाली है. तो अगर आप देखोगे आपका जो रिटेल इंडस्ट्री होता है, राइट, घर का मतलब जहां पे पीपल बाय हाउसेस, कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अगर सामने वाले बिल्डर को पता है कि यार बैंक्स तो आजकल आंख बंद करके लोन दे रही है, तो नो डाउट एक काम करो, रेट थोड़े से बना दो, बिकॉज ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम 15% आपसे ले लेंगे, बाकी 85% तो आपको बैंक देखने ही वाली है, राइट. इसमें क्या होता है ना, चीजों के भाव बढ़ने लगते हैं. तो घर जैसी बड़ी कमोडिटी हो या फिर आपके दाल चावल जैसी कमोडिटी हो, इसके भाव बढ़ने लगते हैं, बिकॉज पैसे का सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, ये प्रोड्यूसर को समझने लगता है. और जब चीजों के दाम बढ़ने लगे, राइट, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. तो जब भी रिपो रेट आपका कम होता है तब इन्फ्लेशन का डर आपके सर पे ऊपर होता है. एज ए कंट्री यू हैव टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन. सो आरबीआई इज नाउ नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ as far as the inflation is concerned, because they believe that inflation is still under control. तो मैंने आपको कहा था, राइट, तीन लोग होते हैं, राइट. जैसे हम हॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम रिपो रेट बढ़ा दो ताकि कमर्शियल बैंक्स कम बोरो करे आपसे और मार्केट में कम पैसा दे, ताकि मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई ना आए, राइट. तो ये एक छोटा सा बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया आपके लिए, जो आप एमबीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे. तो ये है सिग्निफिकेंस आपके रिपो रेट का. अब आरबीआई ने बोला कि हम रिपो रेट नहीं करेंगे, उसको चेंज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अब अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखते हो तो आपका जो ग्रोथ पैटर्न है, राइट, इंडिया का जो ग्रोथ पैटर्न है, जो जीडीपी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, राइट, आरबीआई ने पहले क्या बोला था कि हमारा जो जीडीपी है वो 12.6% से ग्रो करेगा. अब आरबीआई बोल रहा है हमारा ग्रोथ कम होकर 9.9% जाएगा. देखो सिंपल सी बात है, आरबीआई मतलब कैसा है ना, आरबीआई इज अमेजिंगली पॉजिटिव. मैंने आरबीआई को कभी भी मेरी जिंदगी में देखा नहीं है कि आरबीआई नेगेटिव हो चुका है. पता नहीं क्या चीज है, बट आरबीआई बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, which is a good thing, but you know let time decide that. I don't want to comment anything on that. Now आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई बोल रही कि अभी अपना जीडीपी थोड़ा घटेगा, बिकॉज अपना जो सेकंड वेव था किसका, कोरोना का, वो आ गया, थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया, डिमांड थोड़ा सा कम हो गया, ऑल दैट स्टफ. बट स्टिल आरबीआई फील दैट वी आर डूइंग गुड, राइट, एंड आरबीआई स्टिल सेइंग दैट कि हम मैनेज कर लेंगे इन्फ्लेशन को 4% तक काइंड ऑफ कंट्रोल करने के लिए. अब यहाँ पे लिक्विडिटी के नाम पे आरबीआई ने क्या करा है, विच इज द एक्चुअल गेम दैट एक्चुअली आरबीआई इज प्लेइंग वेरी वेल.
अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है। अब देखो होता कैसे है, बेसिकली आरबीआई अभी यहाँ पे क्या कर रही है, आरबीआई ने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जहां पे आरबीआई ने बोला है जी सैप, राइट। जी सैप का मतलब क्या होता है, देखो मैंने लास्ट टाइम एक ना बॉन्ड का सेशन बनाया था। आरबीआई क्या करेगी, अभी आरबीआई करेगी बाय बॉन्ड, मतलब आरबीआई भी बॉन्ड बाय करना चालू करेगी, राइट। सिंपल सी बात है, देखो ये इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तो आपका जो बॉन्ड का यील्ड होता है, कूपन रेट उसको कहते हैं, राइट, जो बैज होता है, राइट, बैज का दर जो होता है, एक्सक्यूज मी, वो घट जाता है। तो अभी आरबीआई क्या करेगी, बॉन्ड बाय करेगी, ठीक है। अभी जब आरबीआई बॉन्ड बाय करेगी मार्केट से तो क्या होगा, बॉन्ड की स्केर्सिटी बन जाएगी, मतलब सप्लाई घट जाएगा। तो जिस चीज का सप्लाई घट जाता है उसकी क्या बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, मतलब प्राइस बढ़ेगी। और बॉन्ड और यील्ड का कैसा रिलेशन होता है, उल्टा, मतलब प्राइस बढ़ गया तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा होल्ड करो। अब कॉमर्स वाले बच्चों को याद होगा, हमने पढ़ा है, या फिर एमबीए के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पता होगा, आपने पढ़ा है ओएमओ, राइट, ओमो, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था, आरबीआई क्या करती थी, आरबीआई करती थी प्रिंट मनी, राइट, आरबीआई पैसे प्रिंट करती थी और फिर मार्केट में आके सिक्योरिटीज बाय करती थी। पर जब आरबीआई ये चीजें करती थी, जब भी आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करती थी मार्केट से, तब में कभी भी बताया नहीं जाता था कि आरबीआई मार्केट में जाके सिक्योरिटी बाय करने वाली है। ये जो चीज था इसका सस्पेंशन बना रहता था, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये सस्पेंशन बना रहता था। तो मार्केट में एनालिस्ट लोगों को या फिर जो बड़े बड़े डिसीजन मेकर है उनको ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कब एग्जीक्यूट करने वाली है, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ रहा है, राइट। तो इनको पता ही नहीं था कि आरबीआई कब बाय करेगी, क्या करेगी, दे हैव नो आइडिया। अब मेरे लोगों ने क्या बोला, जी सैप जो है ये आरबीआई कहती है यहाँ पे ये बड़ा प्लान्ड होता है, बेसिकली ये जो चीजें होती है ना ये प्लान्ड होती है। तो अब आरबीआई ने कहा है कि भाई हम वर्थ 1.2 लाख करोड़ के हम बाय करेंगे बॉन्ड्स। अब ये जो चीज होती है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से हटके कैसी होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई आपको बताती नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूं, राइट। जैसे ये पहली बार भी हुआ था, मतलब पहली बार नहीं बहुत बारी हुआ था ये, लास्ट टाइम भी जब ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ था पीपल हैड नो आइडिया, आरबीआई डिड इट ऑल ऑफ अ सडन। विंडो बहुत कम मिलता है लोगों के लिए, राइट। सो यहां पे क्या होता है, जी सैप में आरबीआई आपको बताती है, आरबीआई आपको एक एस्टिमेट देती है कि मैं इतने इतने के बॉन्ड बायबैक करने वाली हूं, इतना इतना होने वाला है। सो मार्केट को ऑलरेडी एक आइडिया लग जाता है कि ये एक्चुअली में आरबीआई इज गोना बाय बॉन्ड्स। अब कहने के लिए तो हम कहेंगे कि भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी है, राइट, कहने के लिए तो हम ये कहेंगे ये ट्रांसपेरेंसी है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक अगर देखोगे तो मार्केट ने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड किया, आज मार्केट तो ऊपर ही था वैसे। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आरबीआई बाइज ऑल दीज बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, उसकी स्केर्सिटी बन जाती है। अब देखो अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। अब आरबीआई को फ्यूचर में जाके पैसे की किल्लत आने वाली है, बराबर। अब आरबीआई को फ्यूचर में जाके पैसे की किल्लत आने वाली है, मतलब आरबीआई मार्केट से पैसा उठाएगी, मतलब आरबीआई वापस बॉन्ड को बाय बैक करेगी, राइट, अगर रादर सेल करने वाली है, बिकॉज अभी दे आर बाइंग ना, दैट्स द रीजन दे आर पेइंग, राइट। सो व्हेन दे सेल दे गेट द मनी। अब इमेजिन करो जब तुम्हारे बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, आरबीआई ने उसके यील्ड को घटा दिया, बराबर। जब आरबीआई को पैसा लगेगा, आज मान लो ये अगर 5% है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, अगर ये 5% है, आरबीआई उसको 4% पे लेके आएगी। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होगी तब आरबीआई कितने पे बाय करेगी, 4% पे बाय करेगी। इसका मतलब आरबीआई ने खुद को फायदा दिया, बराबर। मतलब आपने बाय करके बॉन्ड के दाम, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने घटा दिए, और जब आपको पैसे की जरूरत लगेगी तब आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये चीजें बाय करने वाले हो। अब यहाँ पे एक जो गेम होने वाला है वो है भाई इन्फ्लेशन। अब आरबीआई ये बोलती है कि मुझे इन्फ्लेशन पता नहीं है। दिस क्वेश्चन लिटरली हर्ट मी, बिकॉज इफ आरबीआई इज नॉट गोना टेल अस whether inflation is gonna go upward and downward, then who the hell in the world is gonna tell us this, right? So I would expect RBI to give this kind of an idea, you know what, inflation we will be able to curb, some kind of an assurance. Now रही बात हमारे मार्केट की, तो भाई मेरे सवाल ही नहीं पैदा होता, मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी जो आई है पूरे वर्ल्ड में, मार्केट ने 100% का रिटर्न दिया है पिछले 12 महीने में, राइट। तो मार्केट विल कीप ऑन गोइंग अपसाइड until unless there is any bad news which is going to blow our mind. मुझे लगता नहीं कि कोई बैड न्यूज आने वाली, बिकॉज कोरोना हैज गॉन डाउन नाउ, केसेस कम हो चुके हैं। बॉम्बे में तो मेरे ख्याल से दिन में 1000 से भी कम केसेस आ रहे हैं, जो एक टाइम पे हॉटस्पॉट था, राइट। सो नाउ थिंग्स आर डूइंग गुड, अभी अनलॉक भी होना चालू हो जाएगा, ग्लोबली ऑल्सो थिंग्स आर डूइंग वेरी वेल, एंड आरबीआई कुछ ऐसा कर रही है, मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, तो मेरे ख्याल से मार्केट विल बी रेडी टू मूव द लैडर अप ना फ्रॉम हियर। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी लिक्विडिटी गेम, एंड दिस इज ऑल kind of setting the platform to kind of raise the money in upcoming future. But
रेट ऑफ रिटर्न कम करके, ताकि आरबीआई को कम, बिकॉज यार आरबीआई पैसे कैसे बाय करेगी? आरबीआई बोलेगी चलो मैं सॉवरेन बॉन्ड बेच रही हूँ, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है, तो बॉन्ड कौन लेगा? पब्लिक लेगी, इंस्टीट्यूशंस लेंगे, राइट? द बॉन्ड का जो रेट होगा वो तो कम ही होगा, राइट? तो 5% था तो 4% कर दिया, तो आरबीआई को तो लोन वैसे भी सस्ता मिल रहा है. So that's the way RBI is doing now. I hope आपने समझा. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, I'm so sorry for that, because मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, बट यार मैं रात के 12:15 पौने 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप यू अप्रिशिएट दिस. एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मुझे बताया करो, मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा. जो मेरे फाइनेंस के बच्चे जो मार्केट वगैरह में ट्रेड वगैरह करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. So traders are going to have a lot of fun now, because RBI is actually pitching a lot of liquidity, and this is going to give a lot of good vibes across the globe. So keep playing here, keep making money in the market. Yeah, that's it from my side, guys. Thank you so much. Bye bye.